Hi everyone, this side Kapil. Today I am going to teach you biology, and it is not I am going to teach you very uh, conceptual. I am just going to highlight the keyword, and maybe you can see question from there. Okay, so without wasting your time, let's revise the cell. So first you should know who discovered the cell. Robert Hooke, and he used primitive microscope. And if the question will ask in such a manner that who discovered cell and with primitive microscope, then your answer will be Robert Hooke. And Leeuw van Hooke with improved microscope discovered the free living cell in pond water for the first time. So he discovered the free living cell with the improved microscope. Then Robert Brown, he discovered nucleus. Okay, then you should know who gave cell theory. So these two people, Swan and Skeleton, a very strange name. So SS. So you can remember by SS. And protoplasm is coined by Pugliese. So PP. So from this slide also you can see some question. Hope so. Then plasma membrane. So basically plasma membrane or cell membrane, if any material has to come, they has to pass through this membrane, and this membrane will select which kind of material it is going to let in or let out. So that's why we call it selectively permeable membrane. Okay, so here's a key lines. This is the outermost covering of cell that separate the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some material in and out of cell. It also prevents movement of some other material. So therefore it is called selectively permeable membrane. आउटरमोस्ट सेल है, ठीक है, और ये सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, अलाउस करती है मटेरियल कौन सा अंदर आएगा कौन सा नहीं आएगा, और प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल. सो दीज आर दी कीवर्ड्स. उसके बाद you will see gases are also passing through this membrane, and when gases pass through it is called diffusion. So you will see diffusion through this membrane. Okay, and if gases are passing through this membrane, then definitely water also will pass through, and this is called ऑस्मोसिस. ठीक है, जब गैसेस जाएंगी कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. जब वाटर का मूवमेंट होगा इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब दे आर की टर्म हाइपोटोनिक
isotonic and hypertonic. So when you get hyper, you lose something. So in the same case, when cell is getting hyper, it is losing water. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है. आइसो में कुछ नहीं हो रहा है, आइसो में सेल का साइज सेम है, और हाइपो में सेल इज गेनिंग वाटर. ओके, सो दीज आर द माई बेसिक थिंग हाउ आई रिमेंबर. तो अगर मीडियम में हायर वाटर कंसनट्रेशन है तो हमेशा वाटर हाई टू लो ही जाएगा. देन सेल विल गेन वाटर एंड दिस इज कॉल्ड hypotonic solution. And when exactly the same water concentration सेल में भी और बाहर भी there is a net movement, तो कुछ फर्क नहीं पड़तेगा. Then when medium has low concentration of water than cell, then cell will move from high to low, then cell will lose water and it is called hypertonic solution. Then key point, plasma membrane is flexible, made up of organic molecules called lipids and proteins. We can see only through electron microscope. And cell membrane is flexible and it also enable the cell to engulf food and other material from external environment, and this process is called endocytosis. And amoeba requires its food through such process. So these are the key points. Then moving forward, cell wall. So this is wait, why this is not working? Yes, just hold on, this is not working. So cell wall will be the outermost covering, like पहले plasma membrane, then cell wall, and cell wall is made up of cellulose. And one other term you have to see here, प्लाज्मोलाइसिस. सो जैसे हाइपरटोनिक में होता है, सेम प्लाज्मोलाइसिस में भी होता है. द सेल लूज द वाटर. ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड. देन न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस हैज़ chromosome and chromosome has DNA and protein. So remember that. ठीक है, so these are important keywords कि nucleus has chromosome and chromosome contain DNA and protein, and DNA is a functional gene, something kind of this. So nucleus has double layer covering called nuclear membrane, and if it has membrane, there is some material which will pass through this membrane. And nucleus contain chromosome which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide. So you can see the chromosome when cell is going to be divide, and the shape is rod shape. रोड नहीं, रॉड शेप. ठीक है. देन क्रोमोसोम कंटेन DNA and protein. DNA molecules contain information which is necessary to constructing and organizing cell. Okay, in a cell which is not dividing, जो cell divide नहीं होता है, the DNA is present as part of chromatin material, and chromatin material is visible as entangled mass of thread like structure.
when cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome. So basically यहाँ पे आपको बस ये लाइनें ध्यान में रखनी है कि क्रोमोटिन मटेरियल विजिबल होता है मास ऑफ थ्रेड, एंड वेन एवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड द क्रोमोटिन गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, जब मेरा सेल डिवाइड नहीं होता है तो देन जो डीएनए किस में रहता है, एज अ क्रोमोटिन मटेरियल में, और जब डिवाइड होता है देन वो क्रोमोसोम बन जाता है. सिंपल सी बात. यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेगा सेलुलर रिप्रोडक्शन में. ठीक है, यू जस्ट हैव टू कीप दिस वर्ड इन योर माइंड. ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. समझने की ज़रूरत होती तो आज समझने की ज़रूरत नहीं होती. देन prokaryotic organism. So is a very important line here that in some organism like bacteria, the nuclear region of cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. So basically in some organism there is no nuclear membrane, and that undefined nuclear region containing nucleic acid, and it is called nucleoids. So it is previous year question कि भाई जो अनडिफाइंड रीजन होता है उसको क्या कहते हैं. सो इट इज़ न्यूक्लियोइड्स. सो यहाँ से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें होती है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें बेसिकली मेरा प्लास्टिड्स भी नहीं होता है. प्लास्टिड्स हेल्प इन मेकिंग फूड. ठीक है, तो इसमें रहता है मेगा मेम्ब्रेनस मेगा वेसिकल. ठीक है, जो हेल्प करता है टू मेक फूड फॉर दीज प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये ध्यान रखना. अब साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म बेसिकली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, अब जो मेरे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, एक तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, दूसरे उनके पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बाहर से एक और लेयर नहीं होती है. तो हम कहते हैं कि इन प्रोकैरियोटिक beside the absence of a defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. तो ये उसमें एबसेंट रहते हैं बस. सो यहाँ से उसने दिया भी है कि प्रोकैरियोटिक का साइज दिया है और इसमें ये दिया है. न्यूक्लियर रीजन इसमें एबसेंट रहता है, इसमें वेल डिफाइन है. सिंगल क्रोमोसोम है, मोर देन वन है, इसमें एबसेंट, इसमें प्रेजेंट होगा. जस्ट होल्ड ऑन. उसके बाद मेगा सेल ऑर्गेनल्स. एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट. हर सेल के पास उसकी खुद की मेम्ब्रेन होती है जो उसको सेपरेट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग मल्टी सेलुलर, उनको तो नीड होती है उस लेयर की, बिकॉज लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ. टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर,
these use membrane bound little structure within themselves, means हर किसी के पास खुद की membrane होती है, and this is one of the feature of eukaryotic cells. So ये भी एग्जाम में आया था इन अ सिंगल लाइन में, 4 स्टेटमेंट वो दिए, तो एक लाइन ये भी थी कि जो सेल होते हैं सबके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है, सो दे कैन कीप देमसेल्फ सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है, तो यही जिनके पास मेम्ब्रेन होती है वो है मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपिटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. सो यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है, और लॉन्ग ट्यूबुलस और राउंड ऑब्लोंग बैग्स. ठीक है, कुछ समझ नहीं आया, बस ये समझ में आया कि ये एक नेटवर्क में रहता है एंड काफ़ी लेयर रहती हैं, शीट्स रहती हैं. ठीक है, बस इतना ही आना चाहिए समझ में. उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक होता है और स्मूथ. ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके पास मेरे राइबोसोम रहते हैं और राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन. तो ध्यान रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स प्रोटीन, और जो स्मूथ वाले रहते हैं ये बनाते हैं फैट और लिपिड्स. ठीक है, तो आर लुक्स रफ अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज इनके पास रहते हैं राइबोसोम जो कि प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं. सो क्वेश्चन आ सकता है मैन्युफैक्चर कौन करता है प्रोटीन को, तो वो करता है कौन, आर. और जो एस स्मूथ वाले रहते हैं वो लिपिड्स बनाता है. ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड्स मेरा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को भी बनाता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी तो प्रोटीन और लिपिड से बनती है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोजेनेसिस. ठीक है, ऑल्दो वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइज में भले ही कुछ भी हो लेकिन वो हमेशा क्या बनाएगी, नेटवर्क सिस्टम. ठीक है, ठीक है, बस थोड़ा यहाँ से हम अपना प्लांट सेल देख लेते हैं कि अपना ये बीच वाला न्यूक्लियस है, फिर गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोइड, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ और साइटोप्लाज्म. ये ध्यान रखना. और जो फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है मेगा न्यूक्लियस में एंड साइटोप्लाज्म में. ठीक है, ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. जैसे मेरा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक्टिविटीज़ करते हैं, वैसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी थोड़ा उनको स्पेस देता है, कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी कर लो भाई. तो बेसिकली बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप, इसको बोलते हैं वर्टेब्रेटेस एंड SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल. SCR क्या करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन. तो एक क्वेश्चन आया था कि SCR कि भाई डिटॉक्सिफाई करता है, वो तो ठीक है, पर कहाँ करता है, तो लिवर में. ये बात ध्यान रखना. अब गोल्जी एपरेटस, तो गोल्जी एपरेटस बेसिकली ऐसे रहता है ये कि मेम्ब्रेन बाउंड तो होगा ही, फ्लैटन सेक्स अरेंज, जो सेक्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं ईच अदर के अरेंज में एंड उनको बोलते हैं हम सिस्टन. यहाँ क्या होता है, यहाँ बेसिकली जो
मटेरियल सिंथेसिस हुआ है ईआर पे, जो भी बना है मटेरियल वो पैकेज होता है, डिस्पैच होता है वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है इसका भाई, और ये मेरा लाइसोसोम को ही बनाता है। ठीक है, अब लाइसोसोम भी क्या होता है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन आया था कि डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है इन CAPF, तो वो था RER। लाइसोसोम मेरे काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, जो कि सेल को हमारा क्लीन करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट द सेल ऑर्गेनल्स। फॉरेन मटेरियल इंटरिंग द सेल, बैक्टीरिया एज वेल एज एंड ऑफ द लाइसोसोम सारे खत्म हो जाते हैं जो भी बाहर से आता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस में यहाँ पे होता है, और लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज इनके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन आया था ND में इन ऑर्गेनिक मटेरियल, तो ये गलत है। ऑर्गेनिक मटेरियल को पूरा ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ठीक है, और इसको हम सुसाइडल बैक ऑफ द सेल ही बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया का पास खुद का DNA और खुद का प्रोटीन रहता है, क्योंकि जब इसके पास मेरा राइबोसोम रहेगा तो राइबोसोम मेगा प्रोटीन। ठीक है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन, one is porous while inner is deeply folded, and these fold increase the surface area for ATP generating chemical reaction, and these energy or chemical activities needed for life released by mitochondria in form of ATP. So ATP is energy currency of the cell, and body use energy store in ATP. So basically energy store in ATP for making new chemical compound for mechanical work. Then plastids, leucoplast and chromoplast. Leucoplast stores starch, fat and these are colorless. और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनके पास मेरे क्लोरोफिल रहता है, तो इसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके पास भी खुद का DNA और खुद का प्रोटीन रहता है। तो ध्यान रखना न्यूक्लियस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंड प्लास्टिड्स के पास खुद का DNA एंड खुद का प्रोटीन रहता है। और वैक्यूल्स, बेसिकली दीज आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। ये एनिमल और प्लांट में दोनों में पाए जाते हैं, बट प्लांट में थोड़ा 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को लेके मीन्स कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेल को मेगा टर्जिटी एंड रिजिडिटी को प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसको भी एक्सपेल करने में और वेस्ट को बाहर डालने में हेल्प करता है। जो अमीबा होता है उसमें फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, जो कि खाने को कंज्यूम करता है। बस यही है। उसके बाद सारा चैप्टर वी हैव फिनिश्ड। व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक यूनिट ना, उसी को हम सेल बोलेंगे। सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल डिवीजन होता है। न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो
replace and dead injured cell. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड उसको सेल डिवीजन बोलते हैं कि भाई जब सेल डिवाइड हो रहा है तो वो न्यू सेल फॉर्म हो रहा है. तो एक माइटोसिस मीसोसिस, द प्रोसेस बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, जिसमें सेल क्या होती है ग्रोथ के लिए डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं माइटोसिस. ई सेल कॉल्ड मदर सेल, यहाँ हर सेल को बोलते हैं मदर सेल. इट विल फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल एंड द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल. तो जो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल होंगी वो क्या बनाएंगी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो यहाँ 8 है तो यहाँ भी उसने 80 बनाए. एंड इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू. तो माइटोसिस में याद रखना कि आइडेंटिकल मेरे जो डॉटर सेल होते हैं, ठीक है, और दे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज ए मदर सेल. नाउ स्पेसिफिक सेल ऑफ reproductive organ or tissue in animal and plant divide to form gametes. ठीक है, which after fertilization gives rise to offspring. They divide by different process called meiosis, which involve two consecutive division. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cell have half the number of chromosome than that of mother cell. Okay. तो भाई यहाँ जैसे मदर सेल है, यहाँ पे जो डॉटर सेल है सब में इसके आधे आधे हो गए, दो 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 दो. ठीक है, तो बेसिकली जो मायोसिस है ये मेरा रिप्रोडक्शन या जो ऑफस्प्रिंग को जन्म देना होता है उसके लिए होता है. सो फार आई अंडरस्टूड. सो आई थिंक ये लास्ट वाला इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. बट ये जो है फ्रॉम हेयर यू विल सी सम क्वेश्चन. सो होप इफ़ यू सॉल्व सम previous year question, then you will see you can solve most of the question. Then again come on this video and then say thank you, goodbye.